You got married slightly earlier, right? आपको लगता है आपकी जल्दी शादी हो गई थी? बहुत जल्दी हो गई थी, बट तभी हो गई क्या थी 21, 22? 22 पे हो गई थी। 21 पे मेरा ख्याल है रिश्ता आया था मेरा, बड़ी जल्दी हो गई थी। फॉरेन कॉलेज के बाद हो गई थी, आफ्टर माय कॉलेज। But right now you guys are not together. No, we parted ways 4 years ago in 2020. Almost 4 years. पहले परमिशन ले ली थी that if you are okay about talking, if you are okay with talking about this, तो इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा टच कर रहे हैं। और is it easy to take this decision? I know आपकी जो अपब्रिंगिंग है माशाल्लाह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। पहले वाले इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कभी उनको ये नहीं सुनने को मिला कि लोग क्या कहेंगे। आई नो कि आपके फैमिली में नहीं आपने ये सुना, आपके पेरेंट्स ने माशाल्लाह से आपको कभी इस बात का नहीं बोला। लेकिन फिर भी जब ये डिसीजन आपने ले रही थी या ये जब ये चीज़ चल रही होगी तब था कि कैसे मैं इस चीज़ को फेस करूँगी या मुझे क्या इसका रिएक्शन मिलेगा सोसाइटी में, एंड वाज इट स्केरी, ओवरवेलमिंग? What were you going through? So I was speaking to a psychologist. I also know psychology a little. I wanted to be a criminal psychologist at one point. जिसकी मुझे इजाज़त नहीं मिली बाबा से, उनका I don't want you dealing with criminals. Okay. But खैर that aside. So क्या therapy के लिए गई थी? Therapy के लिए नहीं गई थी. That's also very odd. I do have friends in every sector. So we were sitting and we were talking, and after I had parted ways with my ex-husband, so she told me, she said, do you know, I know that there are levels of traumas, and death is number 10. Do you know divorce is number 9? It is that big of a trauma. Yes, that's why I'm asking you. It is. And of course, I mean, I'm human. I wouldn't say that it did not affect me at all. Everybody gets affected in every way. It did affect me. But I was so consumed in work. मैं इतनी consume हो गई थी, मैंने औलाद किया, उसके फ़ौरन बाद मैंने इश्क किया। फिर मैं खाली ड्रामे नहीं करती, मैं साल में एक ही ड्रामा करती हूँ। मैंने काम बहुत ज़्यादा किया, तो मैंने इतना सोचा नहीं। एक दिन मेरी अम्मी ने, मुझे याद है, मेरा एक ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आया था, सॉरी नहीं, जर्मनी से, और हम भाग रहे थे, उस टाइम बड़ा कम था, मैं बाज़ार में थी और मेरी अम्मी ने ऐसे मेरा बाजू खींचा एकदम से, पता नहीं उनको क्या हुआ। I had just come back, so she just, she held me bazaar ke beech mein, and she looked at me and she said, "Are you depressed? Are you okay?" So I said, "Mama, do you think I have time?" Oh God. And then we got back to work. So I think I have never gotten the chance to sit and actually process it after walking away. While being there, of course, you process things differently. Once you're out of it, you process things differently. I did not get time to process it, and now I think, now that you're talking to me about it after 4 years, अब मैं क्या उसके ऊपर वो करूँ? You're okay. I'm fine, but it also, major credit goes to your family, of course. आप चाहे कोई भी औरत हो या कोई भी मर्द हो, मर्दों के लिए भी मुश्किल होता है। ये हम समझते हैं कि सिर्फ औरत के लिए मुश्किल होता है, औरत के लिए नहीं होता, मर्द के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है, दोनों के लिए मुश्किल होता है। और फिर that is when your family comes in, how supportive they are. Alhamdulillah, अल्लाह का बहुत करम है that he chose these parents for me. They were very supportive. ठीक है, तो मैंने भी कोई भी, मैं आपको कहती हूँ, कोई भी डिसीजन से पहले it's my dad. ठीक है, so you called him and you discussed it with him? I didn't even discuss it with him. He called me. He called me to Lahore. I was in Karachi. My father had gotten operated, and he's the guy. He's a very strong man. He's also a Scorpio. Okay, so you have to keep that in mind. Okay. And मतलब वो ऐसे कि वो अपना ऑपरेशन करा के घर आ जाएंगे और वो हमें नहीं बताएंगे. He's that strong. And अभी he was getting operated, and then he called me. तो उन्होंने मुझे बुलाया लाहौर. मैं कराची से सीधा गई हूँ और उन्होंने मुझसे बात की, जो भी उन्होंने मुझसे बात करनी थी. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा are you sure? Because of course आप वापस अपने पेरेंट्स के घर आ रहे हैं, छोटा डिसीजन नहीं होता. तो उन्होंने कहा माने स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है ना, मैंने तो आपको किसी चीज़ से नहीं रोका है, तो इट्स ओके. खैर वो मेरे अब्बू कहते थे कि माने ये सोशल नॉर्म्स ना होते ना तो मैंने तो आपको कभी रुखसत ही नहीं करना था. ठीक है, तो वो कहते थे कोई मसला नहीं है. तो अभी भी मैंने उनसे पूछा, और मैं इधर भी मतलब आई डिड नॉट हैव दिस वर्ड विद माय मॉम और एनीवन एल्स. आई स्पोक टू हिम एंड ही सेड कि मैं हूँ, कोई मसला नहीं है. तो मैंने कहा ठीक है.
आपकी बात सुन के मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि माँ बाप की कितनी बड़ी सपोर्ट होती है लड़कियों के लिए, बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, और अगर वो हों तो साथ फिर लड़कियां हर मुश्किल टाइम से गुजर जाती हैं, यू नो। बहुत ज़रूरी होता है। और लड़कों के लिए भी, उनको भी फैमिली से सपोर्ट बहुत चाहिए होती है, लड़कियों को भी चाहिए होती है, और बहुत केसेस में नहीं मिलती, जो बात सही नहीं है। मैं कल ही एक खातून से बात कर रही थी जो मुझे कह रही थी कि मैं 30 इयर्स की थी जब मैं विडो हो गई और मेरे 3 बच्चे थे, एंड हर मदर डिड नॉट एक्सेप्ट हर बैक इनटू द हाउस। सो यू नो, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। सो अब आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरा एक्सपीरियंस नेचुरली बहुत मुख्तलिफ होगा, हर एक का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात भी नहीं की आज तक, क्योंकि मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकती, या कोई मेरे से फैसिनेट हो जाए। अभी भी मेरे जानने वालों में किसी की भी शादी में मसला आता है ना, दे कॉल मी एंड दे एक्सपेक्ट मी टू टेल देम टू पार्ट वेज, बट आई नेवर डू। I always tell them to not. It's not like I have any regrets or anything, but you know, of course everybody's life is different. I built a life for myself even before I settled down. So I had a lot to fall back on. True. With a lot of support. Not everybody has that. That is when I say that it is very important for women, girls, even for men, for every individual to have at least some skill set or education or something to be independent, financially independent, whatever craft, whatever thing that makes you financially independent, you need to have that regardless of what gender you have. तो जब आपके पास देखें, बहुत से लोग हैं जो अनहेल्दी मैरिजेस के अंदर, मैं ये नहीं कह रही मेरी थी, मैं इसीलिए इसके ऊपर बात नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि लोग इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लें या इसको मेरे से रेजोनेट करें या मेरे एक्सपीरियंस से, इसका मेरे एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका सुनने वालों से है जो देख रहे हैं। माइनूर, आपने शुरू पहले वाली इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बोली थी जहाँ आपने ये जिक्र किया था, और आई थिंक आप दोबारा भी रिपीट कर सकती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों में कोई बुरा हो, कभी कभी दो लोग they don't get along. See, you see, opposites attract. Good can also not make it right. Yeah. You know. So you had said, मुझे अभी भी याद है कि you said 2 great people not necessarily would be great together. Yes. Could be, and it's not कि किसी एक का कसूर है. हाँ, and it is not always कि कोई इंसान बुरा है या आप बुरे हैं, आप भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, अगला भी बहुत अच्छा हो सकता है, और ये नहीं है कि मेरा कोई प्रॉब्लम है या मेरे अभी भी बहुत अच्छे हैं, we're very cordial, हम अभी भी एक दूसरे को, बल्कि रादर हम अब एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक ज़्यादा अच्छा है, हम और ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं एक दूसरे की अब भी। और मेरे एक्स इन लॉज भी, मेरी एक्स मदर इन लॉ है, वो मेरे लिए आज भी उतनी मोहतरम है, और उनमें और मेरी अम्मी में कोई फ़र्क नहीं है आज तक भी। तो वो जो हमने रखा ही नहीं है इस तरह। तो आप अच्छे तरीके से भी पार्ट वेज कर सकते हैं, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रीज़न हम इस टॉपिक पे बात करते तो उसकी वही 2 बातें थी। जब मुझे माइनूर ने सारी बात बताई थी तो मुझे ये बात स्ट्राइक की थी कि हाउ हर पेरेंट्स वर सो इम्पॉर्टेंट इन सपोर्टिंग हर। तो हम इस बात को हाईलाइट करना चाहते थे कि पेरेंट्स मस्ट बी देयर फॉर देयर डॉटर्स, जो भी वो ज़िंदगी में करना चाहें। सेकेंड, माइनूर ने जो बात की कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहती थी। और थर्ड यही बात जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट थी, आप दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा जब कपल्स ब्रेकअप करते हैं तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है, वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। मुझे लगा कि ऐसी बातों पे जहाँ हम इतने नेगेटिव और इतने टॉक्सिक किस्से सुनते हैं, हमें पॉजिटिव स्टोरीज़ या पॉजिटिव इंस्पिरेशंस या पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए कि हाँ, सेपरेशन हो सकती है, डाइवोर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है विद गुड नोट, विद पॉजिटिव। बुरे लफ्ज़ों में याद करना ज़रूरी भी नहीं होता। फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट मुझे लगता है, इतना वक्त भी गुजर गया और फिर मतलब उसमें कोई बुरी बात भी नहीं थी कि मैं उसके बारे में कुछ बुरा कहूँ।